Hello students, welcome back to our channel. Today we are going to discuss directive principles of state policy. Till now we are able to understand types and meaning of fundamental rights, and all of the fundamental rights we have discussed in last class. Along with that, we have discussed that any of the fundamental right is not absolute. There are some positive restrictions over each and every type of fundamental right. Got it? So today, the thing that we are going to discuss, that is directive principles of state policy. Now, look at the name, directive principles of state policy. It means these are the principles which are given directives, which are given direction to the government while it is framing policy for the state. So basically these are some kind of guidelines. Now think that what was the need to include these kind of things in Indian Constitution. So we have discussed fundamental rights, but there were only 6 fundamental rights. So with the help of directive principles, basically these are the principles which ensure well-being of the citizens, and government is responsible for that. So basically these principles direct our government to frame the policy in such a manner that every people can be benefited from it. यही ऑब्जेक्टिव था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने का, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के थ्रू हमने क्या कर दिया, सिटीजन्स को राइट्स प्रोवाइड करवा दिए, बट अभी भी कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंप्लीमेंट करना जरूरी था, बट अगर हमने उनको डायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया होता तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते और हमारे फंडामेंटल राइट्स कहीं ना कहीं और बहुत ज्यादा ब्रॉड और एक्सपेंडेड हो जाते और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस उनका नहीं रहता. इसीलिए जो चीजें हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड नहीं की, वो ही चीजें, वही प्रोविजंस हम लोगों ने डाल दी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ताकि हम इंश्योर कर सके उन सिटीजन्स का बेनिफिट, वेलबींग जो हमारी टेरिटरी में रह रहे हैं. सो नाउ लेट अस डिस्कस इट. आई होप द basic of directive principle is clear to all of you. So now we are going to discuss it. The makers of our constitution knew that independent India was going to face many challenges. अब हमारे constitution framers को पता था कि independent India बहुत सारी problems को face करने वाला है. Foremost among there was the challenge to bring about equality and well-being of all the citizens. और उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज था, वो एक चैलेंज क्या था उनमें से, कि आप सभी के सभी सिटीजन्स के लिए इक्वालिटी इंश्योर करोगे और वेलबींग को इंश्योर करोगे. They also thought that certain policy direction was required for handling these problems. अब क्या होगा कि अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो डेफिनेटली देयर शुड बी सॉल्यूशन फॉर दैट. और वो सॉल्यूशन किस फॉर्म में होना चाहिए कि कुछ ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए जो इन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सके, इन प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सके. At the same time, the constitution did not want future government to be bounded by certain policy decisions. लेकिन उसके साथ साथ क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो फ्यूचर गवर्नमेंट को बाउंड नहीं करना चाहता था ऐसी पॉलिसीज के थ्रू. अभी आप इसका मतलब नेक्स्ट पैराग्राफ में समझोगे कि बाउंडेशन का मतलब क्या था. Therefore, some guidelines were incorporated in the constitution, but they were not made legally enforceable. Now understand the meaning of this upper line. इसमें बेसिकली क्या मेंशन था कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे वो नहीं चाहते थे कि हमारी जो फ्यूचर गवर्नमेंट बने ना, वो अपनी पॉलिसी डिसीजंस के लिए, पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा बाउंडेड हो जाए. और इसीलिए क्या किया, इसीलिए जो गाइडलाइंस हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के थ्रू दी गई, उनको लीगली इन्फोर्सेबल नहीं बनाया गया. It means these are not justiciable. It means if government is not implementing these kind of principles, then you cannot go in the shelter of judiciary for their implementation. This is the meaning of that these are not legally enforceable. Got it? After that, this means that if a government did not implement a particular guideline, we cannot go to the court asking the court to instruct the government to implement that policy.
और अगर गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं करती तो हम कोर्ट के पास नहीं जा सकते उन पॉलिसीज को लेके। Thus these guidelines are नॉन जस्टिसेबल। समझ आया? नॉन जस्टिसेबल का मतलब, अब देखो फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल। मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का कोई एक्सप्लॉइटेशन करता है, वी हैव सीन इन द लास्ट क्लासेस दैट वी कैन गो टू द जुडिशरी, वी कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। But what is the major thing with directive principles of state policy? That these guidelines are non-justiciable. If the government is not implementing these policies, you cannot go to the courts. Got it? Parts of the Indian Constitution, that is part of Indian Constitution that cannot be enforced by the judiciary. यानी ये वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको जुडिशरी इन्फोर्स नहीं कर सकती। Those who framed our constitution thought that the moral force behind these guidelines would ensure that the government would not take them seriously. अब याद रखना, इन जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इनके पीछे कोई लीगल पावर नहीं है, बट इनके पीछे एक फोर्स है, दैट इज द मोरल फोर्स। यानी इनके पीछे जो फोर्स लगता है वो मोरल फोर्स है, यानी गवर्नमेंट को ये चीजें इंप्लीमेंट करनी चाहिए, और ये मोरल फोर्स ही कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकता है कि वो इन चीजों को इंप्लीमेंट करें सीरियसली। बिसाइड्स they expected that the people would also hold the government responsible for the implementing these directives, so a separate list of policy guideline is included in the constitution. The list of these guidelines is called the directive principles of state policy. यानी कुछ ऐसी चीजें जो हम फंडामेंटल राइट्स के थ्रू इंश्योर नहीं करवा पाए, अब हमने क्या किया, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पीछे एक मॉरल फोर्स इंप्लीमेंट कर दिया, और वही मॉरल फोर्स गवर्नमेंट को बार बार फोर्स करता है टू इंप्लीमेंट दोज काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स। और यही जो गाइडलाइंस हैं कि हम लोगों का वेलबींग कैसे इंश्योर करेंगे, कैसे हम इंश्योर करेंगे कि लोग सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा हैप्पीली स्टे कर सके, तो इसके लिए कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं उन प्रिंसिपल्स की एक गाइडलाइंस हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की गई है, और यही जो गाइडलाइन है इसी को बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। So I hope meaning of directive principles of state policy is clear to all of you. In simple terms, these are the guidelines which are giving instruction to the government while it is framing policy for the state. Got it? It means these are simply guidelines only. And every time they are showing direction to the government. And that's why we are calling them directive principles of state policy. But keep in mind, there is no any legal force behind these directive principles of state policy. There is one force only, and that is moral force. Right? So, what do the directive principles contain? अब इनमें include क्या होता है? क्या इसमें शामिल करते हैं हम लोग? The chapter on directive principle list mainly three things. अब देखो इसमें क्या include होता है? The goal and objective that we as a society should adopt. बेसिकली इसमें क्या होता है, देयर आर सम टाइप ऑफ गोल्स एंड टारगेट्स, सम काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव्स दैट वी एज अ सोसाइटी शुड अडॉप्ट, जो एक सोसाइटी में हम लोगों को अडॉप्ट करने चाहिए, वो सारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। सर्टेन राइट्स दैट इंडिविजुअल शुड एंजॉय अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स, और देखो ये वही वाले राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स के अलावा आप एंजॉय कर सकते हैं, कि इंडिविजुअल पर्सन एंजॉय कर सकता है। certain policies that the government should adopt, और कुछ ऐसी policies जो government को adopt करनी चाहिए, right? So you may get some ideas of the vision of the makers of our constitution by looking at some of the directive principle shown below. इसीलिए आपको क्या मिल गया, कहीं ना कहीं एक आइडिया मिल गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का, कि उनके माइंड में क्या चल रहा था, that for every type of society, which kind of society we are going to make, there should be some type of goals and objectives, and along with fundamental rights there should be some other rights also, and for being a citizen those rights should be availed and enjoyed by the citizens of the country. Along with that, certain policy that the government should adopt, इसके अलावा कुछ ऐसी policies भी होनी चाहिए जो हमारी गवर्नमेंट को अडॉप्ट करनी चाहिए for the well-being of the society. It means now the vision of the constitution framers is clear in your mind. So the government from time to time tried to give effect to some directive principles of state policy. They passed several zamindari abolition bill, nationalized banks,
enacted numerous factory laws, fixed minimum wages, cottage and small industry were promoted, and provision for reservation for the uplift of the scheduled caste and scheduled tribes were made. इसीलिए क्या किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की वजह से हमारी गवर्नमेंट ने ना कई सारे एक्शंस लिए. एग्जाम्पल्स, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, मतलब जो जमींदारी सिस्टम था कि बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे वो एक्सप्लॉइट करते थे छोटे छोटे फार्मर्स को. हमने क्या किया, कुछ जमींदारी अबॉलिशन बिल इंट्रोड्यूस करवाए. और देखो ये फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड नहीं हो रहे, बट इवन देन फॉर बीइंग अ सिटीजन यू शुड लिव योर लाइफ दैट इज फुल ऑफ डिग्निटी, एंड दैट्स व्हाई वी हैव पास्ड दीज काइंड ऑफ थिंग्स. वी आर यूजिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट. उसके अलावा कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर प्रमोटेड, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बनाई गई. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सारे के सारे लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में वर्क गेन नहीं कर पा रहे हैं, और छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगर बनेंगी तो क्या होगा, रूरल एरियाज का डेवलपमेंट होगा, एंड पीपल विल गेट द ऑक्यूपेशन एट देयर लोकल एरियाज ओनली, दे विल नॉट हैव टू मूव एनीवेयर. इसीलिए इसकी वजह से आपको क्या बेनिफिट होंगे, दो बेनिफिट होंगे. आपके विलेज ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएंगे, और जो पॉपुलेशन होगी दैट विल बी एबल टू गेट वर्क एट देयर नेटिव प्लेस ओनली, राइट. अलॉन्ग विद दैट प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर द अपलिफ्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, हमने क्या किया, प्रोविजन कर दिया शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स वर मेड, एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए प्रोविजंस किए, राइट. और ये सारी चीजें कहां से आई हैं, ये सारी चीजें इफेक्ट शो करती हैं हमारी सोसाइटी पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. Because all these things which we have studied right now, they are the result of directive principles of state policy only. Got it? So such efforts to give effect to directive principles include the right of education. अब कुछ और चीजें हैं जिन पर हमारे फंडामेंटल राइट्स का इम्पैक्ट दिख रहा है. अब वो क्या है कि इंक्लूड द राइट टू एजुकेशन, फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर द कंट्री, partial right to work under employment guarantee program and the midday meal scheme etc. अब देखो इसके अलावा भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या चीजें इंक्लूड होती है, जो हमें राइट टू एजुकेशन मिला है, राइट. क्योंकि वो बाद में ऐड हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि राइट टू एजुकेशन जो 6 to 14 ईयर की एज है वो दैट वाज नॉट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, उसको बाद में हमने ऐड किया, राइट. उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज, पंचायती राज वाज आल्सो नॉट इन द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, ये भी हमने बाद में 73rd और 74th अमेंडमेंट करके ऐड कर दिया. ओके. पार्शियल राइट टू वर्क अंडर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना. देखो जब आपने फंडामेंटल राइट्स डिस्कस किए तो हमने राइट टू इक्वालिटी में पढ़ा था दैट पीपल कैन अडॉप्ट ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस एंड एबिलिटीज, है ना. बट यहाँ पे क्या है, ये एक लीगल फोर्स बन जाता है गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाएगी, और इसके लिए एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम इनिशिएट करेगी. आई थिंक डिफरेंस इज क्लियर बिटवीन बोथ ऑफ दीज थिंग्स, राइट. एंड द मिड डे मील स्कीम एक्सेट्रा. अब मिड डे मील स्कीम क्या, कि जो स्टेट है वो इंश्योर करेगा कि जो लोग होंगे उनका हेल्थ अच्छा हो, तो इसलिए क्या कर दिया हमने, मिड डे मील स्कीम इंश्योर करवा दी. So because all these things are welfare schemes you can say, and this is the clear impact of directive principles of state policy only, right. So that is the benefit, whether we are able to see that there is no any legal force behind directive principles of state policy, but even then for being legal force behind it, directive principles play a very important role. Okay. So now अब देखो जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आई टोल्ड दैट दीज आर नॉट जस्टिसेबल, इन द सेम मैनर एक पार्ट और है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज. अब देखो राइट्स और ड्यूटीज, अगर आप महात्मा गांधी की वर्डिंग्स को सुनोगे, उन्होंने क्या बोला है, महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि राइट्स एंड ड्यूटीज दे आर कंप्लीटली सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे आर नॉट ऑपोजिट टू ईच अदर, क्योंकि वो क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं. अगर आप एक के बिना दूसरे के एग्जिस्टेंस पे एक्सेप्ट करोगे तो देयर इज नो एनी बेनिफिट ऑफ दैट. जैसे हमने पढ़ा था लिबर्टी और इक्वालिटी, बोथ आर कंप्लीटली कोरिलेटेड. इन द सेम मैनर योर राइट्स एंड ड्यूटीज आर आल्सो कोरिलेटेड. अब देखो राइट्स और ड्यूटीज कैसे, आपके जो राइट्स हैं कहीं ना कहीं वो किसी और पर्सन की ड्यूटी बन जाते हैं, आपकी जो ड्यूटीज हैं वो किसी और पर्सन के राइट्स हैं. गॉट इट. सपोज आप लोगों का राइट है एजुकेशन गेन करना, तो
आपके टीचर्स की ड्यूटी बन गई कि वो आपको क्या करेंगे, अच्छी क्वालिटी वाली एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे। गॉट इट? उसके अलावा अगर आपको राइट्स मिले हुए तो आपकी कुछ ना कुछ ड्यूटीज भी हैं टुवर्ड्स योर सोसाइटी, टुवर्ड्स योर नेशन, है ना? तो उनको क्या कंसीडर करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। लेकिन याद रखना, दीज आर ऑल्सो नॉन जस्टिसेबल, right? So let us have a look of fundamental duties. In 1976, the 42nd Amendment of the Constitution was passed. Among other things, this amendment inserted a list of fundamental duties of citizens. इसमें क्या हुआ, जो 1976 में हमने 42nd अमेंडमेंट अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में, उसने क्या किया, उसने फंडामेंटल ड्यूटीज की एक लिस्ट प्रोवाइड करवा दी। ओके, इन ऑल 10 ड्यूटीज वर इन्यूमरेटेड, और इनिशियली क्या किया गया था, 10 ड्यूटीज को हमने इंक्लूड कर दिया था। However, लेकिन प्रेजेंट में इनकी जो स्ट्रेंथ है दैट इज 11, जो हमने पढ़ा ना 6 to 14 ईयर की एज तक बच्चे फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन गेन करते हैं। सो 11th ड्यूटी इज दैट ओनली विच इज रिलेटेड टू द पेरेंट्स, दैट पेरेंट्स विल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन। ये अब पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज आई टोल्ड यू कि आपके राइट्स किसी ना किसी की ड्यूटीज हैं। आपका राइट है फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन गेन करना, स्टेट की ड्यूटी है आपको प्रोवाइड करवाना, और आपके पेरेंट्स की भी ड्यूटी बन जाती है, फंडामेंटल ड्यूटीज बन जाती हैं कि वो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे। गॉट इट? हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से एनीथिंग अबाउट एनफोर्सिंग दीज ड्यूटीज। अब जो सेम कॉन्टेक्स्ट आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में पढ़ा कि जस्टिसेबल नहीं है, तो ये भी जस्टिसेबल नहीं है, राइट? अब एज सिटीजन्स वी must abide by constitution, defend our country, promote harmony among all citizens, protect the environment। जैसे कैसे, किस टाइप की ड्यूटीज हैं कि जैसे हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बाइंडेड होंगे, उसकी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, डिफेंड आवर कंट्री, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करेंगे, अगर जरूरत पड़ती है तो हम क्या करेंगे, मिलिट्री हेल्प भी प्रोवाइड करवाएंगे। मतलब अगर कहीं वॉर जैसी सिचुएशन हो जाती है तो आपकी ड्यूटी होनी चाहिए कि हम क्या करेंगे, हम अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने की कंप्लीट ट्राई करेंगे। प्रमोट हार्मनी अमंग ऑल सिटीजन, सारे लोगों के बीच आप हार्मनी बैलेंस करके चलोगे। उसके अलावा प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखोगे। इस टाइप की कुछ ड्यूटीज गिवन है। इनिशियली आई टोल्ड दे वर 10, बट लेटर ऑन बाय यू कैन से इन 2009 व्हेन वी had included one more fundamental duty that is related to the parents, that they will provide their children better education. However, it must be noted that our constitution does not make the enjoyment of rights dependent or conditional upon fulfillment of duties. लेकिन एक चीज याद रखना, as I told you, ये भी fundamental duties की तरह justiciable नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये नहीं बोला कि अगर आप ड्यूटीज फुलफिल करते हो तो ही आप अपने राइट्स को एंजॉय कर सकते हो, राइट? In this scene, the inclusion of fundamental duties had not changed the status of our fundamental rights. इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ड्यूटीज ने आपके राइट्स पर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, बल्कि क्या हुआ है कि आपके फंडामेंटल राइट्स पे ड्यूटीज की वजह से कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा, because these are you can say non-justiciable. You can't go to in the form of to the judiciary. अब देखो फंडामेंटल ड्यूटीज है दैट यू विल ऑनर योर नेशनल सिंबल, नेशनल एंथम ऑल्सो, नेशनल सॉन्ग ऑल्सो। बट अगर मान लो नेशनल सॉन्ग कहीं पे प्ले हो रहा है और लेकिन कोई ऐसा पर्सन जो खड़ा नहीं हो रहा, बिकॉज इट्स द प्राइड ऑफ आवर नेशन, और हम क्या करना चाहिए, वी शुड शो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स इट। बट अगर कोई पर्सन बैठा ही रह गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको ले जाके कोर्ट में खड़े कर दोगे कि इसने हमारे नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट नहीं किया, इसीलिए इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, राइट? सो दैट्स व्हाई इन द सेम मैनर एज वी हैव स्टडीड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी नॉन जस्टिसेबल। होप नाउ इट इज कंप्लीटली क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Now, check your progress. It is estimated that there are about 3 million urban homeless in India. Night shelters are not available for more than 5% of the population. मतलब 3 मिलियन लोग तो हमारी अर्बन पॉपुलेशन है जो होमलेस हैं, नाइट शेल्टर अवेलेबल नहीं है उन 5% ऑफ द पॉपुलेशन को, मतलब उनके पास ऐसा प्लेस भी नहीं है जहां वो अपनी नाइट को इजीली कहीं ना कहीं स्पेंड कर सके. Hundred of these old sick homeless people are killed by cold wave during winter. और homeless हैं तो it means they are the direct victim of environmental condition.
इसीलिए क्या होता है, जो ओल्ड पीपल है, सिक पीपल है, होमलेस है, उनको जो कोल्ड वेव चलती है ना, उनकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। एंड दे कैन नॉट हैव राशन एंड वोटिंग कार्ड्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। और देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आपके पास रेजिडेंस नहीं है तो आपके पास क्या नहीं बन सकता, आपका आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं बनता, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड जैसी फैसिलिटीज भी यू कांट अवेल। And ration card, this is you can say this is a tool by which the government can help the needy person. But if you are not having any kind of permanent settlement, so your ration card will not be made, that you will not get from your government. Okay, so a large number of these homeless people are casual worker who earn very low wages. ये वही लोग हैं जो आपके casual working करते हैं और बहुत less earn करते हैं. They travel to the city in search of work from different parts of the country. और वो occupation की search में cities की तरफ shift करते हैं डिफरेंट पार्ट से. दैट्स वाई आप लोगों ने देखा होगा कि जो मोस्टली सिटीज के एरिया होते हैं उनके बाहर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा जैसे कि ऐसे एरिया जैसे झोपड़ी जैसे हट्स वगैरह बना के रहते हैं, स्लम एरियाज बनना शुरू हो जाते हैं. दीज आर दोज पीपल ओनली बिकॉज इन द सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन दे मूव टू द सिटीज, बट देयर ऑल्सो देयर इज ऑलरेडी अ लॉट ऑफ क्राउड. दैट्स वाई दीज पीपल आर नॉट एबल टू गेट वर्क इजीली. And because of the less amount, because of the less income, they are not able to afford their homes also. That's why they have to live in slum areas. Right? अब उसके बाद, अब ये स्टोरी आपको समझ आई. This story is basically, or this situation is basically showing you the picture, showing you the reality of the society. है ना? तो अब क्या है, अब आपको इसके बिहाफ पे ना कुछ चीजें गिवन है. सो देखो, यूज दिस फैक्ट्स टू राइट अ पिटीशन टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. योर पिटीशन शुड मेंशन. अब आपकी पिटीशन में अगर आप पिटीशन डालते हो तो आपकी पिटीशन में कुछ चीजें इंक्लूड होनी चाहिए. वो क्या इंक्लूड होनी चाहिए? व्हाट फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग डिनाइड टू द होमलेस इन देयर एवरीडे लाइफ. व्हाट काइंड ऑफ ऑर्डर यू विल रिक्वेस्ट द सुप्रीम कोर्ट टू इशू. अब आपके सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि वो जो पीपल हैं स्लम एरियाज में रह रहे हैं, दोज हु आर नॉट हैविंग शेल्टर देयर होम्स, तो उनके कौन से फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है? क्या कोई फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट हो रहा है? तो देखो, हमने कल भी स्टडी किया था कि जो राइट टू लाइफ है उसमें आपके सारे के सारे राइट्स बेसिकली इंक्लूड हो जाते हैं कि आपको अपनी लाइफ डिग्निफाइड वे में जीने का राइट होता है. बट इफ द पीपल आर नॉट लिविंग in that condition which is good for their health, अगर ऐसी कंडीशन में उनको नहीं मिल पा रही है, so it will create problems for them only. तो इसीलिए क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारी जो राइट टू लाइफ है ना, उसके साथ कहीं ना कहीं हम कंसीडर कर सकते हैं दैट इज नॉट फुलफिल्ड. राइट? गॉट इट? बट अब देखो, सेकेंड इज व्हाट काइंड ऑफ ऑर्डर वुड यू रिक्वेस्ट द सुप्रीम कोर्ट टू इशू. लेकिन अब देखो, आप कोर्ट को क्या नहीं कर सकते, आप कोर्ट को ऑर्डर नहीं दे सकते, बट यू कैन रिक्वेस्ट ओनली. एंड विच काइंड ऑफ रिक्वेस्ट यू विल डू? अब देखो, आप कोर्ट कैन गिव जजमेंट्स एंड वी विल हैव टू फॉलो, बट फॉर बीइंग अ सिटीजन ऑफ द कंट्री व्हाट यू कैन डू फॉर दोज पीपल? So we can put a petition on the basis of the directive principles of state policy only. That is the use of these policies. और अगर ऐसी बेसिस पे अगर पिटीशन जाएगी तो फिर जुडिशरी क्या करेगी? जुडिशरी विल प्रोवाइड सम काइंड ऑफ गाइडलाइंस फॉर दोज पीपल who are living in these areas, and government will give some kind of direction to the government as well, that in which manner the problem should be tackled and how we can ensure dignified life to all these people, a life that is full of dignity. How can we ensure? Got it? So यहाँ पे देखो, फंडामेंटल राइट्स although we know कि फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, बट आप जो उनकी हेल्प कर सकते हो पिटीशन डालने में, यू कैन गिव द कंटेक्स्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्योंकि ये वही आपके प्रिंसिपल्स हैं जो बार बार गवर्नमेंट को रिमाइंड कराते हैं कि हमने ना कुछ गोल सेट किए थे. आपने एसडीजी सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जैसे जीरो हंगर है ना, जेंडर इक्वालिटी, पॉवर्टी इरेडिकेशन, वो सारी चीजें आपने सुना होगा. तो यहाँ पे भी सेम चीजें वही है कि कोर्ट के सामने आप क्या शो कर सकते हो, ऑन द बिहाफ, ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वी कैन से टू द सुप्रीम कोर्ट और वी कैन पुट अ पिटीशन इन
courts basically कि वो क्या करे, they can ensure the benefit to all the people and especially those people who are not aware about their rights. क्यों aware नहीं है? Because they are living in slum areas, they are living in that area where there is no any basic facility like health and education. और अगर वो चीजें अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा? Those people will not be able to get information about their rights. So for being a citizen, we can give the context of directive principles of state policy, and that is the use of directive principles of state policy. Right? So I hope till now you are able to get the meaning of term directive principles of state policy. अब तक आपको इतना जरूर समझ आया कि directive principles of state policies होते क्या हैं, right? अभी तक आपको ये समझ आया कि ये बेसिकली डायरेक्शंस होती हैं हमारी गवर्नमेंट्स के लिए, ये नॉन जस्टिसेबल होती हैं, आप जुडिशरी के पास नहीं जाओगे फॉर देयर इन्फोर्समेंट, आप क्या नहीं कर सकते, आप इनको इनके पीछे क्योंकि लीगल पावर नहीं है, सो यू कांट टेक द शेल्टर ऑफ जुडिशरी. बट दीज आर सम काइंड ऑफ गोल्स, दीज आर सम काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स जो हमारी गवर्नमेंट के सामने कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं कि ये चीजें हमने अचीव करनी है, राइट? और ये वो राइट्स हैं जो हमने फंडामेंटल राइट्स में प्रोवाइड नहीं करवाए, बट ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं वो चीजें इंक्लूड की हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है. Hope whole context of directive principle is clear to all of you because direct question can come in your examination. Write down the importance of directive principles of state policy while we are not having any kind of legal force behind them. So I hope now you all are in the position to answer of this question as well. Okay, so now important thing that what is the relation between fundamental rights and directive principles of state policy. That part we will discuss in next video. I hope till now everything is clear to all of you. But if you are having any kind of doubt and queries, you can ask your doubts in comment section. Next part we will do in next video. Till then, stay connected, keep learning. Thank you. Thanks a lot.